شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ میری اور عامر کی بچپن سے دوستی تھی۔ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے، لیکن جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو عامر اور اس کی فیملی دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئی۔ عامر کو پڑھائی کا بالکل شوق نہیں تھا اور مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، لیکن جب مجھے موقع ملتا تھا میں عامر کو کال کر لیتا تھا اور میں ہمیشہ عامر سے کہتا کہ امی ابو کا خیال رکھنا، گھر میں چکر لگاتے رہنا۔ ویسے تو میرا چھوٹا بھائی بھی تھا، اس کا نام اسد تھا، وہ میٹرک میں پڑھ رہا تھا۔ پھر میری تعلیم مکمل ہوئی اور میں اپنے ملک واپس آ گیا۔ امی ابو مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر میں نے عامر کو کال کر کے بتایا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ پھر عامر نے کہا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا کہ عامر گھر آتا تھا؟ امی نے بتایا بہت کم چکر لگاتا تھا۔ امی نے کہا مجھے تمہارے دوسرے دوستوں نے بتایا کہ عامر نے کچھ آوارہ لڑکوں سے دوستی کر لی تھی اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے۔ امی نے کہا تمہیں تو پتہ ہے پڑھائی تو اس نے بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی۔ عامر کے ابو اسے جاب پر لگاتے ہیں لیکن وہ ٹک کر کام نہیں کرتا۔ اس نے کہا اب میں آ گیا ہوں، اسے سیدھے راستے پر لے آؤں گا۔ اور پھر چند ہی دنوں کے بعد مجھے بہت اچھی جاب مل گئی۔ امی نے کہا میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے، اس کا نام ماریا ہے اور وہ بہت ہی نیک اور شریف لڑکی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ امی نے مجھے اس کی تصویر دکھائی، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے فوراً ہاں کر دی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھر میں نے عامر کو کال کر کے بتایا کہ میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا جلدی واپس آؤ، لیکن عامر میری مہندی والے دن پہنچا۔ میں اس سے ناراض تھا کہ اب آ رہے ہو۔ عامر نے کہا میں نے آنے کی بہت کوشش کی لیکن وہاں برف باری کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گئے تھے۔ عامر نے کہا مجھے معاف کر دو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو۔ پھر شادی کا دن آ پہنچا اور ماریا میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ جب عامر نے ماریا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے عامر سے پوچھا کیسی لگی بھابھی؟ عامر نے کہا کہ کاشف تم بہت لکی ہو جو تمہیں اتنی خوبصورت بیوی ملی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں آیا، ماریا ریڈ لباس میں دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے منہ دکھائی کا تحفہ گولڈ کی رنگ دی جو ماریا کو بہت پسند آئی۔ میں نے ماریا سے کہا تمہیں پا کر مجھے لگتا ہے کہ مجھے دنیا کی تمام دولت مل گئی۔ ماریا نے کہا مجھے بھی لگتا ہے کہ شاید میں نے بھی کوئی نیکی کی تھی جس کے بدلے میں آپ مجھے ملے۔ پھر صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ماریا نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے قرآن پاک پڑھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ہم نے ہنی مون پر جانا تھا، لیکن آفس والوں کی کال آ گئی کہ بہت ضروری کام ہے، آفس آؤ۔ پھر مجبوراً مجھے آفس جانا پڑا۔ اس وجہ سے ہمارا ہنی مون تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ایک دن ماریا صحن میں رسی سے کپڑے اتار رہی تھی۔ اس نے دیکھا گیٹ میں اس کا دیور اسد 2 لڑکوں سے بات کر رہا تھا۔ وہ لڑکے اسد کے ساتھ بہت بدتمیزی سے بات کر رہے تھے۔ جب ماریا ان کے پاس پہنچی تو وہ لڑکے ماریا کو دیکھ کر اسد سے کہنے لگے لاسٹ وارننگ ہے، اب ہم جا رہے ہیں۔ ماریا نے اسد سے پوچھا یہ کون لوگ تھے؟ اسد نے کہا بھابھی آپ وعدہ کریں کسی کو بتائیں گی نہیں۔ ماریا نے وعدہ کر لیا۔ اسی لمحے ماریا کی سانس آ گئی۔
और असद बाहर चला गया और 1 हफ्ते की बाद मारिया और काशिफ भी हनीमून के लिए चले गए। रास्ते में काशिफ ने एक ढाबा देखा। उसने वहां गाड़ी रोकी और मारिया से कहा, चलो थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। फिर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। काशिफ ने कहा, मैं वॉशरूम से होकर आता हूँ। मारिया खड़ी थी। एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में से आमिर बाहर आया। उसने कहा, मारिया भाभी, आप यहाँ पर? मारिया ने कहा, हम मरी जा रहे हैं हनीमून के लिए। आमिर ने कहा, हाँ मुझे याद आया, कुछ दिन पहले काशिफ ने बताया था। आमिर ने कहा, काशिफ कहाँ है? मारिया ने कहा, वॉशरूम गए हैं। आमिर ने कहा, आप यहाँ धूप में क्यों खड़ी हैं? मेरी गाड़ी में एसी ऑन है, आप गाड़ी में जाकर बैठे। मारिया ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, काशिफ आते ही होंगे। आमिर ने कहा, मैं जानता हूँ वो 15-20 मिनट से पहले नहीं आएगा। फिर मारिया जाकर आमिर की गाड़ी में बैठ गई। आमिर के 2 दोस्त पहले ही गाड़ी में छुपे हुए थे। जैसे ही मारिया गाड़ी में बैठी, आमिर के दोस्तों ने रुमाल उसके मुंह पर रख दिया और वो बेहोश हो गई। जब मारिया को होश आया तो उसने देखा कि उसके पास एक लड़की बैठी थी। उसने बाहर जाकर फौरन किसी को आवाज दी। फिर एक औरत कमरे में आई। वो पान खा रही थी। उसने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। मारिया ने कहा, मैं कहाँ हूँ? मुझे अपने शौहर के पास जाना है। उसने कहा, तुम्हें तुम्हारे शौहर के दोस्त आमिर ने यहाँ बेच दिया है। ये सुनकर मारिया रोने लगी। मारिया ने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने शौहर के पास जाना है। उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मारिया के मुंह पर मारा और कहा, एक बार जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जाता। और दूसरी तरफ काशिफ जब वॉशरूम से बाहर आया, उसने मारिया को बहुत ढूंढा। फिर वो घर वापस आ गया। उसने घर आकर अपनी माँ बाप को बताया। वो भी ये सुनकर बहुत परेशान हो गए कि मारिया कहाँ चली गई। फिर काशिफ ने आमिर को फोन किया और उसे मारिया के बारे में बताया। काशिफ का रो रो कर बुरा हाल था। फिर आमिर और काशिफ वो दोनों पुलिस स्टेशन गए। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने कहा कि जैसे ही हमें कोई खबर मिली हम आपको बता देंगे। फिर पुलिस उस जगह गई जहां से मारिया लापता हुई थी। पुलिस ने वहां लोगों से मारिया के बारे में पूछा और मारिया की तस्वीर भी दिखाई। तस्वीर देखकर चाय वाले ने कहा, ये लड़की यहाँ खड़ी थी, एक लड़का गाड़ी में आया, ये उसके साथ बैठकर चली गई। फिर पुलिस ने काशिफ को बताया कि तुम्हारी बीवी किसी जानने वाले के साथ खुद गई है। फिर आमिर ने काशिफ से कहा कि भाभी किसी के साथ भाग गई है। काशिफ ने कहा, मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी मारिया किसी के साथ भाग गई। काशिफ बार बार यही कह रहा था कि मेरा दिल कह रहा है मारिया के साथ कुछ गलत हुआ है। फिर थोड़ी देर के बाद काशिफ की अम्मी ने आकर बताया कि मारिया का जेवर भी गायब है। ये सुनकर आमिर ने कहा, देखा, मारिया भाभी ने पूरा प्लान बनाकर घर से भाग गई है और वो अपना तमाम जेवर भी लेकर गई है। ये सुनकर असद ने कहा, काशिफ भाई, भाभी जेवर लेकर नहीं भागी। काशिफ ने कहा, क्या मतलब? असद ने बताया, भाई मैंने जुआ खेला था और मैं बहुत बड़ी रकम जुए में हार गया था। एक दिन वो लोग अपनी रकम लेने घर आए। भाभी ने उन्हें मेरे साथ देख लिया था। फिर भाभी ने मुझसे पूछा कि ये लोग कौन हैं। फिर मैंने सारी बात भाभी को बताई। भाभी ने अपना जेवर लाकर मुझे दिया। ये सुनकर काशिफ ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? असद ने कहा, मैं बहुत डर गया था। उधर मारिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया हुआ था। मारिया ने चमन बाई से कहा कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।
चमन भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद दिन इसे भूखा रखो तो इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। वहां पर भी मारिया बाकायदगी से नमाज पढ़ती रही और अपने परवरदिगार से रो रो कर एक ही दुआ मांगती कि अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना और मुझे जल्द मेरे शोहर से मिलवा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। वहां पर एक रुबीना नामी लड़की थी। उसको भी कई साल पहले उसके चचा ने धोखे से यहाँ बेचा था। रुबीना को मारिया से बड़ी हमदर्दी थी, क्योंकि वो जब भी मारिया को रोते देखती तो उसको अपना वक्त याद आ जाता था। जब वो यहाँ आई थी, रुबीना भी मारिया की तरह रोती और चिल्लाती थी, लेकिन इसकी किसी ने मदद ना की और उसे चमन बाई की हर बात मानना पड़ी। एक दिन रुबीना चुपके से मारिया के पास गई। मारिया ने रुबीना को अपनी सारी कहानी सुनाई और रुबीना से कहा कि वो फ़ोन पर मेरे शौहर से मेरी बात करवा दे। रुबीना ने मारिया से कहा कि मेरी मदद तो किसी ने नहीं की थी, लेकिन मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। रुबीना ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर से तुम्हारी बात तो नहीं करवा सकती क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं होता, लेकिन तुम मुझे अपने शौहर का नंबर दे दो। जैसे ही मौका मिलेगा मैं चमन बाई के फ़ोन से तुम्हारे शौहर को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। मारिया ने अपने शौहर का नंबर रुबीना को दे दिया। रुबीना मौके की तलाश में रहने लगी। जैसे ही रुबीना को मौका मिला, उसने मारिया के शौहर को फ़ोन किया और मारिया और उस जगह के बारे में बता दिया। मारिया के शौहर ने कहा, मैं फौरन पहुंच रहा हूं। काशिफ ने पहले आमिर को कॉल करने का सोचा, फिर उसे याद आया कि आमिर शहर में नहीं है। वो अपने किसी अजीज की फौतगी पर अपनी वालिदा के साथ गया हुआ था, इसलिए काशिफ अकेला ही पुलिस स्टेशन गया और सारी बात बताई। पुलिस ने चमन बाई के कोठे पर छापा मारा और रुबीना की मदद से मारिया को बरामद कर लिया गया। रुबीना और दूसरी लड़कियां भी आज़ाद हो गई। मारिया काशिफ को देखकर बहुत खुश थी। वो काशिफ के गले लगकर रोने लगी। फिर काशिफ ने मारिया से पूछा कि तुम्हें यहाँ कौन अगवा करके लाया था। जब मारिया ने आमिर का नाम लिया तो काशिफ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। फिर पुलिस ने काशिफ से कहा कि वो कॉल करके आमिर को जल्दी वापस बुलाए। काशिफ ने आमिर को फ़ोन करके पूछा कि तुम कब वापस आओगे। आमिर ने कहा, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। जैसे ही आमिर घर पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिर काशिफ ने आमिर से कहा, तुमने ये सब क्यों किया? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त थे, भाइयों से बढ़कर तुम्हारी इज्जत और प्यार करता था और तुमने ये सिला दिया। आमिर ने बताया कि मैं मारिया से शादी करना चाहता था और ये मेरे ही मोहल्ले में रहती थी। मैं इसे पसंद करता था। आमिर ने कहा, मारिया का घर हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर था। आमिर ने कहा, मैं हमेशा मारिया को आते जाते देखता था। फिर मैंने अपनी अम्मी को रिश्ते के लिए मारिया के घर भेजा, लेकिन मारिया की अम्मी अब्बू ने रिश्ते से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा और उसके पास अच्छी जॉब भी हो वो लड़का चाहिए था। मैं कम पढ़ा लिखा था और मेरे पास जॉब भी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने मारिया को तुम्हारी दुल्हन के रूप में देखा तो मेरे दिल में आग लग गई और मैंने बदला लेने की ठानी। आमिर ने कहा, उसके माँ बाप ने मुझे ठुकराया था, मैं उसे तुम्हारे साथ कैसे खुश देख सकता था, इसलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया। ये सब सुनकर काशिफ ने आमिर के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं और हमारा एक बेटा भी है। आज मैं अपने सास ससुर देवर और अपने शौहर काशिफ के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।